everyone, welcome to the video. So today's video is gonna be on the same topic which we have studied earlier. So आज का question जो है वो हमें ये कह रहा है कि a group of 10 rats feed on a diet. Okay, so there are 10 rats which are feeding on diet A, and there is another group that consists of 8 rats and that are feeding on different diet, that is B diet. Records are the following: increase in the weight in grams. So this is the record of their weight, and you need to check. Let me just increase the size of the question so that you can see it clearly. Okay, so if I tell you this, a group of 10 rats, so this is okay. Now can you see this? This is diet A and this is diet B. So the diet A, those rats which were following diet A, those were 10, and 8 rats were following diet B. So this is the data given of their weight. So if I actually try to explain you the question, so we will just fetch the data from the question. देखो, अगर मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बताऊं तो आपको ये पता है कि ये 2 डेटा है, ठीक है, 2 डेटे के बारे में दिया है. सो यू आर अवेयर ऑफ कि यहाँ पर 2 सैम्पल है. अब आपको टेस्ट कौन सा है ये भी आपको पता करना है. तो टेस्ट ऐसे पता करते हैं. टी टेस्ट के लिए मैंने कंडीशन आपको बताई थी that the sample should be smaller than 30. So you can see both the sample are smaller than 30. This is 10 and this is 8. So they are smaller than 30. So now this is confirmed that this test is going to be solved by, this question is going to solve by t test. Now what they are asking is test whether the diet A and B differ significantly as regards their effect on increase in the weight is concerned using 5% of significance. I hope it's clear. So they are saying that is diet, understand what they are saying. So you need to test whether the diet A and B differ significantly as regards their effect on increase in weight is concerned by using 5% of significance. So basically you need to test on 5% level of significance. Also they are asking whether the diet A and B differ significance, I mean on the increase of their weight, is there any significance difference? They're asking that. So you are aware of it, that they are asking if they both are different or not. Okay, so like basically we will just let the hypothesis. So what is going to be the hypothesis? That both the diet should be equal. Okay, we will write diet A is, there is no significant difference. There is no significant difference in both the diets, and H1 is going to be diet A and B differ significance as regards their effects when they're increasing in the weight. Okay, so this is going to be the hypothesis of significance. Okay, so I'm going to write over here that H0 is going to be no significance difference. Okay, आई होप इट्स क्लियर. मैंने सारा लिख लिया है, ठीक है. ये मेरा जो है हाइपोथेसिस हो गया है. एच नॉट देर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, एच जो है देर इज़ अ सिग्निफिकेंस बोथ द टाइप्स. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चन, ठीक है, तो ये एच नॉट हो गया. अब हमने कैलकुलेशन करनी है. सो यू हैव टू सी, तो 10 है वो N1 ले लिया है. रैट 2 जो डाइट 2 का है वो N2 ले लिया, सैम्पल 2. ठीक है, इसी तरह मैंने डाइट ए जो एक्स है, डाइट ए को मैंने एक्स लिया है, डाइट बी को वाई लिया. तो दिस इज़ द डेटा गिवन, एंड उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पर सोल्यूशन किया है. ठीक है, तो लेट मी जस्ट गेट माई हाईलाइटर. तो यहाँ पर देखो मैंने इस सब का एडिशन किया, सो आई गेट दिस नंबर, और इसी को हम एक्स बार निकालेंगे, मतलब कि समेशन एक्स अपॉन एन जो है एक्स बार कैलकुलेट करता है. ठीक है, मैंने यहाँ पर यही चीज़ लिखी है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. तो हमारा एक्स बार जो है वो आ गया 6.4. ठीक है, उसके बाद मैंने एक्स माइनस एक्स बार किया, मतलब कि 5 में से माइनस किया 6.4 को, तो ये आया, सबको किया, एंड देन मैंने उसको स्क्वायर किया. देन मैंने एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाल लिया. देन मैंने वाई कैलकुलेट किया, y को लिखा, मतलब y को प्लस किया, देन y बार कैलकुलेट किया,
एंड वाई बार कैलकुलेट करके 5 आ गया। उसके बाद आई जस्ट सब्ट्रैक्टेड वाई बार, दैट मीन्स मीन, फ्रॉम दी वाई वैल्यू वाई, and then I did a square of that, so you get this value. So you get summation x minus y bar का होल स्क्वायर भी मिल गया अपन को, ठीक है। y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर जो है वो 82 आया है, ठीक है। सो इफ़ आई टेल यू अबाउट दी s, हम s कैलकुलेट कैसे करेंगे। यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, सो वी आर गोना यूज़ दैट फार्मूला। लेट मी जस्ट राइट इन द नोट, जितने भी फार्मूले यहाँ पर यूज़ हैं वो मैं सारा नोट में लिख देती हूँ, सो दैट यू डोंट हैव प्रॉब्लम। आई हैव रिटन द फार्मूला ऑन दिस स्टिकी नोट, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एक्स बार ऐसे कैलकुलेट करना है और वाई बार ऐसे, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं रिकॉर्ड किया था बट रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई, बट कोई बात नहीं, अब मैं फिर से बता देती हूँ। तो एस स्क्वायर की वैल्यू ये होगी, एस के लिए ये वाली वैल्यू होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फार्मूला लिखने वाले हैं, उसके लिए तो n1 + n2 - 2, ठीक है। तो दिस इज़ द फार्मूला। और एक्स टी कैलकुलेट की वैल्यू आप सबको पता ही है, उसके लिए फार्मूला होता है एक्स बार माइनस वाई बार, ठीक है, एस। अब एस की वैल्यूज़ डिपेंड करती है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। नाउ अगर आप चाहते हो इसको लिख सकते हो कि एक्स बार क्या है, वाई बार क्या है। तो एक्स बार जो है वो सैम्पल 1 का मीन, सैम्पल 2 का मीन, मैं वो भी लिख देती हूँ। मीन ऑफ सैम्पल 1, ठीक है, S1, मीन ऑफ सैम्पल 2, ठीक है, सैम्पल 1 साइज़, ठीक है, और यहाँ पर भी साइज़ ऑफ सैम्पल 2, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं सोल्यूशन के बारे में। तो अगर आप यहाँ पर देखो, मैंने सारा कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना था s, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया है, लेट मी हाईलाइट इट अगेन, ये जो वैल्यूज़ हमने हाईलाइट किए इसका, यहाँ पर जो स्टिकी नोट में है आप देख सकते हो, ये वैल्यूज़ हमें इनका यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक्स बार कैलकुलेट किया, वाई बार जो भी वैल्यूज़ थी दोनों की रखी यहाँ पर, उनको ऐड किया तो ये आया। नीचे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 16 आ चुका है, उसको डिवाइड किया, फिर उसका रूट निकाला तो ये आया, ठीक है। अब टी की वैल्यू यहाँ से पुट करके इसमें पुट करी तो टी कैलकुलेटेड की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब हमें टैबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो टेबल की वैल्यू कैसे देखेंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ऑल वी नीड इज़ टैबुलेटेड वैल्यू। यू कैन सी ओवर हियर हमारे पास यहाँ पर टेबल आ गया है। मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो अभी हमें पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 16 है। अगर आप यहाँ पर देखो, एक सेकेंड, यहाँ पर इफ़ यू लुक ओवर हियर डिग्री ऑफ फ्रीडम 16 दिया है। अब हमें यहाँ पर 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम की कॉलम में जाना है और हमें यहाँ पर 5% सिग्निफिकेंस दिया है, आप देख सकते हो। तो 5% मतलब होता है 0.05। अब आपको ये नहीं मालूम कि टेस्ट कौन सा है, टेस्ट जो है 1 टेल है या फिर 2 टेल है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब आपके पास सिंपल सिचुएशन नहीं दी है, जब कोई चीज़ आपको बतानी है कि ये सिग्निफिकेंट, इसमें कोई मतलब वो पूछ रहा है कि डिफरेंट है कि नहीं, तो ऑब्वियसली ये सिंपल केस नहीं है, तो ये 1 टेल टेस्ट है, ठीक है। तो ये 2 टेल वाला जो है कैंसिल आउट हो जाता है वीकली। तो 0.05 यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से नीचे गए 16 पे जाएंगे और ये वाला चीज़ के लिए यहाँ पर ये वैल्यूज़ आएगी। तो देखो 1.74 मैं लिख लेती हूँ, 1.8 वैल्यू है आपकी, ठीक है। तो वो ये है, ठीक है, 1 ठीक है। अब आप इसको कंपेयर करो तो ऑब्वियसली आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है यहाँ पर बताती हूँ मैं, यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है आपकी, कैलकुलेटेड वैल्यू, सो इफ़ यू जस्ट कंपेयर, आपने यहाँ पर देखा ये वाली ये है और ये इसकी वैल्यू है। सो इफ़ यू हैव अ कंपैरिजन, तो यहाँ पर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन टैबुलेटेड वैल्यू, टेबल की जो वैल्यू। इस कंडीशन में हाइपोथेसिस इज़ एक्सेप्टेड, ठीक है।